dear students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the new chapter of Science class 3rd, chapter number 12, that is air, water and weather. So students, air and water, the very most important and the precious resource found on the earth's surface, because of which the life has become possible on earth. All right. And then also we will learn the day-to-day condition or the changing condition of a particular place at a particular time, that is known as weather. So today in this session we will learn about wind, water, weather and the season. First of all, we have to look at the pictures given below and write the name of the seasons. Alright, so you can see this picture here, the sun is shining very brightly in the sky. So this is what? This is a sunny day. Alright, so we'll write SUNNY, sunny. Secondly, over here, you can see it's very cold. So we can say it's what? A cold day. Over here, the people, it is raining very heavily and the people are using umbrella or the raincoats to protect themselves from the rain. And this is known as rainy day. And here the wind is blowing very strongly. So we can say that it is a windy day. Alright. Ciao. Now, we all know that air and water. क्या है? Air and water are our basic needs. The air in our atmosphere is made up of different gases. है ना? हमारे atmosphere में जो air है वो different gases से मिलकर बनी है. Air does not have its own shape. Air की अपनी कोई shape नहीं होती है. It takes the shape of the container in which it is placed. जिस भी container में आप air को डालेंगे वो उसी की shape ले लेती है. जैसे कि when we blow air into balloon, it takes the shape of balloon. जब आप balloon के अंदर air को blow करते हो तो वो air उस balloon की shape को ले लेती है. We cannot see air although it is present all around us. आप air को देख नहीं सकते हो, भले ही air हमारे चारों तरफ present है every time, still we cannot see it. ठीक है, आप air को केवल क्या कर सकते हैं? Feel कर सकते हैं, and वो भी कब? When it is moving. And moving air को what we call? We call wind. Here are some pictures that show the use of the energy of wind. अब wind की energy का जो use है वहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, जैसे कि जो windmills run करते हैं, that is by the use of energy of wind only. ठीक है? You can fly the kites. आप kites fly करते हो in the sky. That is because of again wind only. Drying clothes, clothes dry होते हैं wind के through ही. Now properties of air. Air की क्या क्या properties हैं? So pure air, जो pure air होती है students, it has no smell. यानी कि उसका कोई स्मेल या ओडोर नहीं होता. बट एयर की एक प्रॉपर्टी है कि वो स्मेल को स्प्रेड कर सकती है. ठीक है. सेकेंडली, द टेस्टी डिशेज, जितनी भी टेस्टी डिशेज है उसकी वजह से आपकी एयर की जो स्मेल है बहुत अच्छी हो जाती है. इट बिकम्स गुड. एयर कैन हैव अ स्वीट स्मेल फ्रॉम फ्लावर्स और परफ्यूम ऑल्सो. है, फ्लावर्स और परफ्यूम की वजह से एयर की काफी एक स्वीट स्मेल भी आपको मिलती है. एयर टेक्स अप स्पेस. एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है. जैसे कि when we drink a can of juice, जब आप एक जूस पीते हो एक कैन के थ्रू, ठीक है, कैन ऑफ जूस आप जब पियेंगे तो एयर उसके बाद उस कैन के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसे फिल कर देती है. सिमिलरली एक एन एम्प्टी ग्लास, एक जो खाली ग्लास होता है वो भी फुल ऑफ एयर होता है, इवन व्हेन इट इज अपसाइड डाउन. आप उसे अपसाइड डाउन भी रखोगे कभी उसके अंदर एयर होती है. एयर हैज वेट. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि एयर का वेट भी होता है. ठीक है, जब आप एयर को क्या एक क्लोज कंटेनर के अंदर पुट करेंगे तो एयर उस कंटेनर की वॉल्स को क्या करती है? पुश करती है. एंड दिस इज कॉल्ड एयर प्रेशर. इसे क्या कहा जाता है? एयर प्रेशर कहा जाता है. द प्रेशर ऑफ एयर इन द टायर्स कैन होल्ड अप द वेट ऑफ अ व्हीकल एंड द लोड इट कैरी. ठीक है, एयर का जो प्रेशर होता है किसी भी व्हीकल के टायर के अंदर, वो प्रेशर ही है जो क्या करता है? व्हीकल के वेट को या फिर उस व्हीकल के ऊपर जो लोड है उसको कैरी कर सकती है. अगर आपके व्हीकल के टायर्स में एयर फिल्ड अप नहीं होगी तो एयर प्रेशर नहीं बनेगा एंड द व्हीकल कुड नॉट मूव और इट डज नॉट कैरी द लोड ऑफ द थिंग व्हिच इज केप्ट ऑन इट. ऑलराइट. नाउ सेकंड मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स ऑन द अर्थ इज वाटर. Our Earth is called the blue planet. हमारे Earth को students blue planet कहा जाता है. Why? Because हमारे Earth का 71% surface जो है water से covered है. ठीक है,
वाटर वेरियस फॉर्म्स में प्रेजेंट है ऑन द अर्थ, जैसे कि क्लाउड्स इन द स्काई, waves in the sea, and as snow on the top of mountains. It is water only present everywhere. Water changes its form continuously. Water अपनी form भी लगातार change करता रहता है हमारे नेचर में. Now we have the properties of water. So water exists in three forms. Water कितनी? Three forms में exist करता है. That is solid, liquid and gas. ठीक है. Ice जो है, ice solid form है water की. Then liquid, जो water अपने आप में एक liquid form है. And जो vapors होते हैं, water vapor, वो gaseous form है. जनरली वाटर हमारी लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन आप वाटर को वेपर फॉर्म में चेंज कर सकते हो व्हेन यू प्रोवाइड हीट टू द वाटर. आप वाटर को हीट प्रोवाइड करोगे तो वो वेपर यानी कि गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा. इट बिकम्स आइस एंड उस वाटर को आप आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं व्हेन यू विल फ्रीज द वाटर. ठीक है. आइस जो कि अपनी सॉलिड स्टेट थी उसकी एक डेफिनेट यानी कि एक फिक्स शेप होती है. लिक्विड वाटर की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती. इट टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट. लिक्विड वाटर उस कंटेनर की ही शेप ले लेता है जिसमें आप उसको रखेंगे. वाटर एक टेस्टलेस ओडोरलेस लिक्विड है एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. थर्ड, वाटर डज नॉट हैव एनी शेप. एज आई टोल्ड यू, वाटर की कोई शेप नहीं होती है. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज poured. वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट. ठीक है. वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं. मीन्स जैसे कि आपके सॉल्ट, शुगर, गैसेस हैं, ये सभी सब्सटेंसेस बहुत इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. ऑलराइट. अमेजिंग फैक्ट दे हैव गिवन यू दैट सी वाटर इज सॉल्टी. सी वाटर जो होता है सुनिए सॉल्टी होता है, बट रिवर्स का जो वाटर है वो सॉल्टी नहीं होता, इसीलिए आप रिवर वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. Now we have the topic water cycle. So sunlight heats water in river, lakes and ocean, causing it to evaporate into vapor, and the water vapor moves upward, which is called evaporation. What they're saying students, कि sunlight जो होती है, सनलाइट जब फॉल करती है तो उसकी हीट की वजह से जितनी भी डिफरेंट वाटर बॉडीज में वाटर प्रेजेंट है, जैसे कि रिवर, लेक, ओशंस में, ये सारा पानी हीट अप होता है. एंड हीट होने की वजह से ये इवेपोरेट होके गैशियस फॉर्म में आ जाता है, वेपर फॉर्म में आ जाता है. अब ये वाटर वेपर बहुत लाइट वेट होने की वजह से अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की तरफ मूव करता है. एंड ये जो प्रोसेस है ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन प्रोसेस. ठीक है. देन वेपर्स कम टुगेदर. उसके बाद जब वेपर्स ऊपर जाते हैं, हाई अप इन द स्काई, ऊपर जाके दे कम क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के क्लोज आते हैं एंड क्या बना लेते हैं? क्लाउड्स. ठीक है. विच कूल्स डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. तो कंडेंसेशन क्या एक प्रोसेस है जहां पे आपका जो वाटर वेपर है वो कूल डाउन होने पे अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाए. दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. सो व्हेन दीज ड्रॉप्स, जब ये सारी वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर क्लोज आती हैं, क्लाउड्स बना लेती हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे ये टिनी ड्रॉपलेट्स बिग ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. एंड क्लाउड्स हैवी होने लगते हैं बिकॉज ऑफ होल्डिंग दीज बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. So slowly and slowly, what जो clouds हैं, they become very heavy, and then they could not hold water more. उसके बाद वो और ज़्यादा पानी होल्ड नहीं कर पाते and सारा पानी नीचे आ जाता है. It falls down back to the earth as rain. And this process is called what? Water cycle. फिर ये process again continue होता है. सारा पानी वापस आया, ये सारा पानी आपका कहाँ चला जाएगा? उसके बाद अगेन वाटर, रिवर, लेक्स में, डिफरेंट वाटर बॉडीज में चला जाता है. कुछ वाटर अंडर द ग्राउंड सीप कर जाता है. फिर अगेन सन की हीट की वजह से धीरे धीरे वाटर वाटर पेपर में चेंज होगा, पानी ऊपर जाएगा, देन कंडेंस होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लाउड्स बनेंगे, वाटर अगेन फॉल डाउन एज अ रेन. सो ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली हमारे अर्थ पर चलती रहती है. दिस इज नोन एज वाटर साइकिल. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. सो एक्चुअल में ये जो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन प्रोसेसेस हैं, दे फॉर्म द वाटर साइकिल. ऑलराइट. नाउ द टॉपिक वी हैव इज वेदर. इन इंडिया में स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट वेदर्स होते हैं इन द डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर. व्हाट इज वेदर? इट इज अ स्टेट ऑफ द एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम. ठीक है. किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस का एक पर्टिकुलर टाइम पे एयर की जो स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड वेदर. एंड वेदर की जो चेंजिंग है वो डिपेंड करती है ऑन द सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन.
ठीक है. नाउ दे हैव गिवन यू सम ऑफ द टाइप्स ऑफ वेदर. नंबर 1, सनी डेज. तो सनी डेज कैसे होते हैं? काफी हॉट एंड ब्राइट होते हैं. स्काई आपका बिल्कुल क्लियर होता है फ्रॉम द क्लाउड्स. सेकेंड टाइप ऑफ वेदर वी हैव क्लाउडी डेज. सो क्लाउडी डेज पे सन जो है बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता एंड इट शोज द साइन ऑफ अ स्टॉर्म. ठीक है. सनी डेज पे क्या स्टॉर्म के साइंस आपको दिखते हैं, जहाँ पे काफी हैवी रेनफॉल या स्ट्रॉन्ग विंड्स के ब्लो होने के चांसेस होते हैं. थर्ड वी हैव विंडी डेज. विंडी डेज में स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती है. समटाइम इट ऑल्सो रेन्स, कभी कभी बारिश भी हो जाती है. साइक्लोन्स आर कॉज्ड व्हेन विंड ब्लोज वेरी फास्ट. जब विंड बहुत फास्टली ब्लो करती है तब वहाँ पे साइक्लोन्स हो सकते हैं. एंड साइक्लोन्स मोस्टली कहाँ? कोस्टल एरियाज में आते हैं. देन वी हैव रेनी डेज. रेनी डेज कौन से डेज है? जब रेनफॉल होता है. एंड जनरली हम अम्ब्रेला और रेनकोट कैरी करते हैं टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन. Now the next topic we have is season. So when any one type of weather condition continues for a few months, we call it a season. जब कोई एक पर्टिकुलर टाइप की जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो फ्यू मंथ्स तक कंटिन्यू रहती हैं, देन वी कॉल इट अ सीजन. ठीक है. सो हमारी कंट्री में मेजरली 3 मेन सीजन्स हैं. दैट इज द समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन. उसके अलावा इन सीजन्स के बीच में 2 और सीजन्स आते हैं. दैट इज द स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन. ऑलराइट. So they have given you rainy season. Rainy season is full of rain, dark clouds, strong winds, thunder and lightning. So rainy season में यही चीज़ देखने को मिलती है. रेन होती है, डार्क क्लाउड्स रहते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती हैं, थंडर, लाइटनिंग. ऑलराइट. When it rains, जब बारिश होती है तो रिवर एंड वेल्स जो हैं वाटर से फिल्ड हो जाते हैं एंड द फ्लावर्स टर्न ग्रीन. सी एट सम प्लेसेस, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है, इट इज नीदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट. ना तो बहुत ज्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे कि कोस्टल प्लेसेस पे होता है. राइट. देन वी हैव विंटर सीजन. सो विंटर सीजन में डेज शॉर्ट होते हैं एंड नाइट्स काफी लॉन्ग होती है. एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन मॉर्निंग्स आर कोल्ड एंड मिस्टी. कोल्ड विंड्स ब्लो करती हैं थ्रू आउट द डे. हम कैसे वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्विल्स का यूज करते हैं इन दिस सीजन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दीज चिली विंड्स. Now, amazing fact, the average condition of the weather over many years is called the climate of a region. And जब बहुत सालों तक किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन की एवरेज वेदर कंडीशंस वैसी रहती हैं, that is called the climate of that particular region. Now let us recall. So liquid, that is water. So उसकी कोई भी अपनी डेफिनेट शेप नहीं होती है. सेकेंडली हमारे अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट जो है वाटर से कवर्ड है. थर्ड, इनविजिबल गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स मिलके क्या बनाती हैं? एयर बनाते हैं. एयर सराउंड्स ऑल ऑफ अस. ठीक है. देन व्हेन एनी वेदर कंडीशन कंटिन्यूज फॉर अ फ्यू मंथ, इट इज कॉल्ड अ सीजन. जब कोई एक पर्टिकुलर वेदर कंडीशन फ्यू मंथ्स तक सेम रहती है किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर, देन इट इज कॉल्ड अ सीजन. ठीक है. अब वेदर की बात करें तो वेदर आपका सनी, विंडी, क्लाउडी कुछ भी हो सकता है. एंड हाउ मेनी? वी हैव 3 मेन सीजन्स इन अवर country, that is summer, winter and rain. All right, so the chapter is completed and I hope you must have understood it very well. Now let's meet very soon in the next session. Till then, keep going well and thanks to all.